اللہ دتا، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ دو بھائی تھے، اللہ رکھا اور اللہ دتا۔ دونوں ریاست پٹیالہ کے باشندے تھے۔ ان کے آباء و اجداد البتہ لاہور کے تھے، مگر جب ان دو بھائیوں کا دادا ملازمت کی تلاش میں پٹیالہ آیا تو وہیں کا ہو رہا۔ اللہ رکھا اور اللہ دتا دونوں سرکاری ملازم تھے۔ ایک چیف سیکرٹری صاحب بہادر کا اردلی تھا، دوسرا کنٹرولر آف اسٹورز کا دفتر کا چپڑاسی۔ دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے تاکہ خرچ کم ہو، بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک صرف اللہ رکھا کو جو بڑا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے چال چلن کے متعلق شکایت تھی۔ وہ شراب پیتا تھا، رشوت لیتا تھا اور کبھی کبھی کسی غریب اور نادار عورت کو پھانس بھی لیا کرتا تھا، مگر اللہ رکھا نے ہمیشہ چشم پوشی سے کام لیا تھا کہ گھر کا امن و سکون درہم برہم نہ ہو۔ دونوں شادی شدہ تھے۔ اللہ رکھا کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیاہی جا چکی تھی اور اپنے گھر میں خوش تھی، دوسری جس کا نام سگرا تھا 13 برس کی تھی اور پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اللہ دتا کی ایک لڑکی تھی زینب، اس کی شادی ہو چکی تھی مگر اپنے گھر میں اتنی خوش نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا خاوند اوباش تھا۔ پھر بھی وہ جوں توں نبھائے جا رہی تھی۔ زینب اپنے بھائی طفیل سے 3 سال بڑی تھی۔ اس حساب سے طفیل کی عمر 18-19 برس کے قریب ہوتی تھی۔ وہ لوہے کے ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام سیکھ رہا تھا۔ لڑکا ذہین تھا، چنانچہ کام سیکھنے کے دوران میں بھی 15 روپے ماہوار اسے مل جاتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں بڑی اطاعت شار، محنتی اور عبادت گزار عورتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ زندگی بڑی ہموار گزر رہی تھی کہ ایکا ایکی ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے مال و جان اور عزت و آبرو پر حملہ ہوگا اور انہیں افراتفری اور قسم پرسی کے عالم میں ریاست پٹیالہ چھوڑنا پڑے گی، مگر ایسا ہوا۔ دونوں بھائیوں کو قطعاً معلوم نہیں کہ اس اونی طوفان میں کون سا درخت گرا، کون سے درخت سے کون سی ٹہنی ٹوٹی۔ جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو چند حقیقتیں سامنے آئیں اور وہ لرز گئے۔ اللہ رکھا کی لڑکی کا شوہر شہید کر دیا گیا تھا اور اس کی بیوی کو بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ دتا کی بیوی کو بھی سکھوں نے کرپانوں سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس کی لڑکی زینب کا بد چلن شوہر بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ رونا دھونا بیکار تھا، صبر شکر کر کے بیٹھے رہے۔ پہلے تو کیمپوں میں گلتے سڑتے رہے، پھر گلی کوچوں میں بھیک مانگا کیے۔ آخر خدا نے سنی۔ اللہ دتا کو گجرانوالہ میں ایک چھوٹا سا شکستہ مکان سر چھپانے کو مل گیا۔ طفیل نے دوڑ دھوپ کی تو اسے کام مل گیا۔ اللہ رکھا لاہور ہی میں دیر تک در بدر پھرتا رہا۔ جوان لڑکی ساتھ تھی، گویا ایک پہاڑ کا پہاڑ اس کے سر پر تھا۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس غریب نے کس طرح 1.5 برس گزارا۔ بیوی اور بڑی لڑکی کا غم وہ بالکل بھول چکا تھا۔ قریب تھا کہ وہ کوئی خطرناک قدم اٹھائے کہ اسے ریاست پٹیالہ کے ایک بڑے افسر مل گئے جو اس کے بڑے مہربان تھے۔ اس نے ان کو اپنی حالت زار الف سے یہ تک سنا دی۔ آدمی رحم دل تھا۔ اس کو بڑی دقتوں کے بعد لاہور کے ایک عارضی دفتر میں اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے روز ہی اس کو 40 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا اور ایک چھوٹا سا کوارٹر بھی رہائش کے لیے دلوا دیا۔ اللہ رکھا نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مشکلات دور کی۔ اب وہ آرام سے سانس لے سکتا تھا اور مستقبل کے متعلق اطمینان سے سوچ سکتا تھا۔ سگرا بڑے سلیقے والی سگڑ لڑکی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، ادھر ادھر سے لکڑیاں چن کے لاتی، چولہا سلگاتی اور مٹی کی ہنڈیا میں ہر روز اتنا سالن پکاتی جو 2 وقت کے لیے پورا ہو جائے۔ آٹا گوندتی، پاس ہی تنور تھا، وہاں جا کر روٹیاں لگوا لیتی۔ تنہائی میں آدمی کیا کچھ نہیں سوچتا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔
सुगरा आम तौर पर दिन में तन्हा होती थी और अपनी बहन और माँ को याद करके आंसू बहाती रहती थी, पर जब बाप आता तो वो अपनी आंखों में सारे आंसू खुश्क कर लेती थी ताकि उसके जख्म हरे न हो। लेकिन वो इतना जानती थी कि उसका बाप अंदर ही अंदर घुला जा रहा है। उसका दिल हर वक्त रोता रहता है, मगर वो किसी से कहता नहीं। सुगरा से भी उसने कभी इसकी माँ और बहन का जिक्र नहीं किया था। जिंदगी उफ्ताओ खेजा गुजर रही थी। उधर गुजरावाला में अल्लाह दित्ता अपने भाई के मुकाबले में किसी कदर खुशहाल था, क्योंकि उसे भी मुलाजमत मिल गई थी और जैनब भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती थी। मिल मिला के कोई 100 रुपए माहवार हो जाते थे, जो तीनों के लिए काफी थे। मकान छोटा था मगर ठीक था। ऊपर की मंजिल में तुफैल रहता था, निचली मंजिल में जैनब और उसका बाप। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह दित्ता उसे ज्यादा काम नहीं करने देता था। चुनाचे मुंह अंधेरे उठकर वो सहन में झाड़ू देकर चूल्हा सुलगा देता था कि जैनब का काम कुछ हल्का हो जाए। वक्त मिलता तो 2-3 घड़े भरकर घड़ोंची में रख देता था। जैनब ने अपने शहीद खावंद को कभी याद नहीं किया था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। वो खुश थी, अपने बाप के साथ बहुत खुश थी। बाज़ औक़ात वो उससे लिपट जाती थी, तुफैल के सामने भी, और उसको खूब चूमती थी। सुगरा अपने बाप से ऐसे चहल नहीं करती थी। अगर मुमकिन होता तो वो उससे पर्दा करती, इसलिए नहीं कि वो कोई नामहरम था, नहीं, सिर्फ एहतराम के लिए। उसके दिल से कई दफा ये दुआ उठती थी, या परवरदिगार मेरा बाप मेरा जनाजा उठाए। बाज़ औक़ात कई दुआएं उलट साबित होती हैं। जो खुदा को मंजूर था वही होना था। गरीब सुगरा के सर पर गमो अंदोह का एक पहाड़ टूटना था। जून के महीने दोपहर को दफ्तर के किसी काम पर जाते हुए तपती हुई सड़क पर अल्लाह रखा को ऐसी लू लगी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया, मगर दवा दारू ने कोई काम न किया। सुगरा बाप की मौत के सदमे से नीम पागल हो गई। उसने करीब करीब आधे बाल नोच डाले। हमसायों ने बहुत दम दिलासा दिया, मगर ये कारगर कैसे होता। वो तो ऐसी कश्ती के मानिंद थी जिसका बादबान हो न कोई पतवार, और बीच मंझधार के आन फंसी हो। पटियाला के वो अफसर जिन्होंने मरहूम अल्लाह रखा को मुलाजमत दिलवाई थी, फरिश्ता रहमत साबित हुए। उनको जब इत्तिला मिली तो दौड़े आए। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि सुगरा को मोटर में बिठाकर घर छोड़ आए और बीवी से कहा कि वो उसका ख्याल रखे। फिर अस्पताल में जाकर उन्होंने अल्लाह रखे के गुस्ल वगैरह का इंतजाम किया और दफ्तर वालों से कहा कि वो उसको दफना आए। अल्लाह दित्ता को अपने भाई के इंतकाल की खबर बड़ी देर के बाद मिली। बहरहाल वो लाहौर आया और पूछता पाछता वहां पहुंच गया जहां सुगरा थी। उसने अपनी भतीजी को बहुत दम दिलासा दिया, बहलाया, सीने के साथ लगाया, प्यार किया, दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, बहादुर बनने को कहा। मगर सुगरा के फटे हुए दिल पर उन तमाम बातों का क्या असर होता। गरीब खामोश अपने आंसू दुपट्टे में खुश करती रही। अल्लाह दित्ता ने अफसर साहब से आखिर में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी गर्दन आपके एहसानों तले हमेशा दबी रहेगी। मरहूम की तजहीज़ो तकफीन का आपने बंदोबस्त किया। फिर ये बच्ची जो बिल्कुल बेआसरा रह गई थी, उसको आपने अपने घर में जगह दी। खुदा आपको इसका अजर दे। अब मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूँ। मेरे भाई की बड़ी कीमती निशानी है। अफसर साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अभी इसे कुछ देर और यहाँ रहने दो। तबीयत संभल जाए तो ले जाना। अल्लाह दित्ता ने कहा, हुजूर, मैंने इरादा किया है कि इसकी शादी अपने लड़के से करूंगा, और बहुत जल्द। अफसर साहब बहुत खुश हुए। बड़ा नेक इरादा है, लेकिन इस सूरत में जबकि तुम इसकी शादी अपने लड़के से करने वाले हो, इसका उस घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम शादी का बंदोबस्त करो,
मुझे तारीख से मुत्तला कर देना, खुदा के फजल व करम से सब ठीक हो जाएगा। बात दुरुस्त थी। अल्लाह दित्ता वापस गुजरांवाला चला गया। ज़ैनब उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी उदास हो गई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो उससे लिपट गई और कहने लगी कि उसने इतनी देर क्यों लगाई। अल्लाह दित्ता ने बड़े प्यार से एक तरफ हटाया। अरे बाबा, आना जाना क्या है, कब्र पर फातिहा पढ़नी थी, सुगरा से मिलना था, उसे यहाँ लाना था। ज़ैनब नामालूम क्या सोचने लगी। सुगरा को यहाँ लाना था? एकदम चौंक कर, हाँ, सुगरा को यहाँ लाना था, पर वो कहाँ है? वही है, पटियाले के एक बड़े नेक दिल अफसर हैं, उनके पास है। उन्होंने कहा जब तुम इसकी शादी का बंदोबस्त कर लोगे तो ले जाना। ये कहते हुए उसने बीड़ी सुलगाई। ज़ैनब ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हो? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अल्लाह दित्ता ने जोर का कश लगाया। अरे भाई, अपना तुफैल, मेरे बड़े भाई की सिर्फ एक ही तो निशानी है, मैं उसे क्या गैरों के हवाले कर दूंगा? ज़ैनब ने ठंडी सांस भरी। तो सुगरा की शादी तुम तुफैल से करोगे? अल्लाह दित्ता ने जवाब दिया, हाँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? ज़ैनब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, हाँ, और तुम जानते हो क्यों है? ये शादी हरगिज नहीं होगी। अल्लाह दित्ता मुस्कुराया। ज़ैनब की ठोड़ी पकड़कर उसने उसका मुंह चूमा। पगली, हर बात पर शक करती है, और बातों को छोड़, आखिर मैं तुम्हारा बाप। ज़ैनब ने बड़े जोर से हूं की, बाप, और अंदर कमरे में जाकर रोने लगी। अल्लाह दित्ता उसके पीछे गया और उसको पिचकारने लगा। दिन गुजरते गए। तो फैल फर्मा बरदार लड़का था। जब उसके बाप ने सुगरा की बात की तो वो फौरन मान गया। आखिर 3-4 महीने के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। अफसर साहब ने फौरन सुगरा के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा सिलवाया जो उसे शादी के दिन पहनना था। एक अंगूठी भी ले दी। फिर उसने मोहल्ले वालों से अपील की कि वो एक यतीम लड़की की शादी के लिए जो बिल्कुल बेसहारा है, हस्बे तौफीक कुछ दे। सुगरा को करीब करीब सभी जानते थे और उसके हालात से वाकिफ थे। चुनाचे उन्होंने मिल मिलाकर उसके लिए बड़ा अच्छा जहेज तैयार कर दिया। सुगरा दुल्हन बनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि तमाम दुख जमा हो गए हैं और उसको पीस रहे हैं। बहरहाल वो अपने ससुराल पहुंची जहां उसका इस्तकबाल ज़ैनब ने किया। कुछ इस तरह कि सुगरा को उसी वक्त मालूम हो गया कि वो उसके साथ बहनों का सा सलूक नहीं करेगी बल्कि सास की तरह पेश आएगी। सुगरा का अंदेशा दुरुस्त था। उसके हाथों की मेहंदी अभी अच्छी तरह उतरने भी ना पाई थी कि ज़ैनब ने उससे नौकरों के काम लेने शुरू कर दिए। झाड़ू वो देती, बर्तन वो मांजती, चूल्हा वो झोंकती, पानी वो भरती। ये सब काम वो बड़ी फुर्ती और बड़े सलीके से करती। लेकिन फिर भी ज़ैनब खुश ना होती। बात बात पर उसको डांटती, डपटती, झिड़कती रहती। सुगरा ने दिल में तहैया कर लिया था वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी और कभी हरफे शिकायत जुबान पर न लाएगी, क्योंकि अगर उसे यहां से धक्का मिल गया तो उसके लिए कोई और ठिकाना न था। अल्लाह दित्ता का सुलूक अलबत्ता उससे बुरा नहीं था। ज़ैनब की नजर बचाकर कभी कभार वो उसको प्यार कर लेता था और कहता था कि वो कुछ फिक्र न करे, सब ठीक हो जाएगा। सुगरा को इससे बहुत ढारस होती। ज़ैनब जब कभी अपनी किसी सहेली के यहाँ जाती और अल्लाह दित्ता इत्तेफाक से घर पर होता तो वो उससे दिल खोल कर प्यार करता, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता, काम में उसका हाथ बटाता, उसके वास्ते उसने जो चीजें छुपा कर रखी होती थीं देता और सीने के साथ लगाकर उससे कहता, सुगरा तुम बड़ी प्यारी हो। सुगरा झींप जाती। दरअसल वो इतने पुरजोश प्यार की आदी नहीं थी। उसका मरहूम बाप अगर कभी उसे प्यार करना चाहता था तो सिर्फ उसके सर पर हाथ फेर दिया करता था या उसके कंधे पर हाथ रखकर यह दुआ दिया करता था, खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे।
सुगरा तुफैल से बहुत खुश थी। वो बड़ा अच्छा खावंद था, जो कमाता था उसके हवाले कर देता था, मगर सुगरा ज़ैनब को दे देती थी, इसलिए कि वो उसके कहरो गजब से डरती थी। तुफैल से सुगरा ने ज़ैनब की बदसलूकी और उसके साथ ऐसे बर्ताव का कभी जिक्र नहीं किया था। वो सुलह कुल थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बायस घर में किसी किस्म की बदमज़गी पैदा हो। और भी कई बातें थी जो वो तुफैल से कहना चाहती तो कह देती, मगर उसे डर था कि तूफान बर्पा हो जाएगा और तू इसमें बचकर निकल जाएगी, मगर वो अकेली इसमें फंस जाएगी और इसकी ताब न ला सकेगी। ये खास बातें उसे चंद रोज हुए मालूम हुई थी और वो कांप कांप गई थी। अब अल्लाह दित्ता उसे प्यार करना चाहता तो वो अलग हट जाती या दौड़कर ऊपर चली जाती जहां वो और तुफैल रहते थे। तुफैल को जुमा की छुट्टी होती थी, अल्लाह दित्ता को इतवार की। अगर ज़ैनब घर पर होती तो वो जल्दी जल्दी काम काज खत्म करके ऊपर चली जाती। अगर इत्तेफाक से इतवार को ज़ैनब कहीं बाहर गई होती तो सुगरा की जान पर बनी रहती। डर के मारे उससे काम न होता, लेकिन ज़ैनब का ख्याल आता तो उसे मजबूरन कांपते हाथों से, धड़कते दिल से तोअन और करहन सब कुछ करना पड़ता। अगर वो खाना वक्त पर न पकाए तो उसका खावन भूखा रहे, क्योंकि वो ठीक 12 बजे अपना शागिर्द रोटी के लिए भेज देता था। एक दिन इतवार को जबकि ज़ैनब घर पर नहीं थी और वो आटा गूंद रही थी, अल्लाह दित्ता पीछे से दबे पांव आया और खलंडरे अंदाज में उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो तड़प कर उठी, मगर अल्लाह दित्ता ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। सुगरा ने चीखना शुरू कर दिया, मगर वहां सुनने वाला कौन था। अल्लाह दित्ता ने कहा, शोर मत मचाओ, ये सब बेफायदा है, चलो आओ। वो चाहता था कि सुगरा को उठाकर अंदर ले जाए। कमजोर थी, मगर खुदा जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई कि अल्लाह दित्ता की गिरफ्त से निकल गई और हाँफती कांपती ऊपर पहुंच गई। कमरे में दाखिल होकर उसने अंदर से कुंडी चढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब आ गई। अल्लाह दित्ता की तबीयत खराब हो गई थी। अंदर कमरे में लेटकर उसने ज़ैनब को पुकारा। वो आई तो उससे कहा, इधर आओ, मेरी टांगे दबाओ। ज़ैनब अचानक पलंग पर बैठ गई और अपने बाप की टांगे दबाने लगी। थोड़ी देर के बाद दोनों के सांस तेज तेज चलने लगे। ज़ैनब ने अल्लाह दित्ता से पूछा, क्या बात है, आज तुम अपने आप में नहीं हो? अल्लाह दित्ता ने सोचा कि ज़ैनब से छुपाना फजूल है, चुनाचे उसने सारा माजरा बयान कर दिया। ज़ैनब आग बगूला हो गई। क्या एक काफी नहीं थी? तुम्हें तो शर्म ना आई, पर अब तो आनी चाहिए थी। मुझे मालूम था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी। अब सुन लो कि सुगरा इस घर में नहीं रहेगी। अल्लाह दित्ता ने बड़े मिस्कीन लहजे में पूछा, क्यों? ज़ैनब ने खुले तौर पर कहा, मैं इस घर में अपनी सौत देखना नहीं चाहती। अल्लाह दित्ता का हलक खुश्क हो गया। उसके मुंह से कोई बात न निकल सकी। ज़ैनब बाहर निकली तो उसने देखा कि सुगरा सहन में झाड़ू दे रही है। चाहती थी कि उससे कुछ कहे, मगर खामोश रही। इस वाक़े को 2 महीने गुजर गए। सुगरा ने महसूस किया कि तुफैल उससे खिंचा खिंचा रहता था। जरा जरा सी बात पर उसको शक की निगाहों से देखता था। आखिर एक दिन आया कि उसने तलाकनामा उसके हाथ में दिया और घर से बाहर निकाल दिया।